Thank you, Lord. We welcome you in the name of Father, Son, and the Holy Spirit. We welcome you in the name of Jesus. आइए हम आराधना करते हैं, परमेश्वर यीशु की महिमा करते हैं और मैं प्रार्थना करती हूँ कि today is the day of a new beginning for you. Today I declare over you that the Holy Spirit will move mightily over your life, over your home, over your heart, over your finances, over your business and your job, your family, your marriage. In the name of Jesus, I declare, in the name of Yeshua, I declare victory over you and over the household, that the airways will be completely clean so that the Holy Spirit will move upon your heart. Right now, Lord, we hand over the service into your hands. In Yeshua's name we pray. We welcome you, Lord, to touch and change our lives. Yes, we go ahead and worship. Thank you, Jesus.
The name of the Lord is our strong tower. Righteous run into it, and they are saved. The name of the Lord is our strong tower. Righteous run into it, and they are saved. Glory to the name of the Lord. 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 The name of the Lord is our strong tower. Righteous are into it, they are saved. The name of the Lord is our strong tower. Righteous are into it, they are saved. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord. All is time. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord. All is time. The name of the Lord is our strong tower. Righteous are into it, they are saved. The name of the Lord is our strong tower. Righteous are into it, they are saved. आशीष है प्रभु का नाम. आशीष है प्रभु का नाम. आशीष है प्रभु का नाम. सर्वोच्च है. आशीष है प्रभु का नाम. आशीष है प्रभु का नाम. आशीष है प्रभु का नाम. सर्वोच्च है. प्रभु का नाम भक्ति चट्टान है. That is the God की रक्षा मांगे. प्रभु का नाम भक्ति चट्टान है. That is the God की रक्षा मांगे. महिमा महिमा हो प्रभु का नाम. महिमा हो प्रभु का नाम. महिमा हो प्रभु का नाम. सर्वोच्च है. महिमा है प्रभु का नाम. महिमा है प्रभु का नाम. महिमा है प्रभु का नाम. सर्वोच्च है. क्योंकि प्रभु का नाम. प्रभु का नाम भक्ति चट्टान है. इसमें लौट के रक्षा पावे. प्रभु का नाम भक्ति चट्टान है. इसमें लौट के रक्षा पावे. पवित्र है प्रभु का नाम. 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 सर्वोच्च है.
who's watching today will learn to be led by Spirit rest of their lives, Lord. As we focus on learning about the Holy Spirit tonight, I pray that Holy Spirit, you will just take charge right now. You will take charge and touch every heart and open it so that we can hear from you. Give us ears to hear today, Lord. If you're already led by the Holy Spirit to speak in tongues, I want you to speak in tongues. Move upon our heart. Move upon our lives like a river, like a river. Quench every thirst, clean every heart. Let your fire fall. Yeshua, Just open your heart and sing. Sing to the King of Kings. Yeshua, Shanti Vilaye Krishna.
power in your name. There is healing in your name. There's deliverance in your name, mighty God. तेरे नाम में है शक्ति, तेरे नाम में है शांति, तेरे नाम में है सामर्थ यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया to the Lamb who was slain. Sing, sing, तेरे नाम में सामर्थ्य हो, तेरे नाम में है मुक्ति, तेरे नाम में शांति, तेरे नाम में surrounded by your grace. Lord, I thank you for each one who's watching today, each household who's logged in today will be blessed by the name of Yeshua. I speak abundance in your life, abundance of peace, joy, prosperity, abundance of joy. The joy will overflow, peace will overflow, prosperity will overflow. Thank you Lord, thank you. धन्यवाद आपका कि आपने समय निकाल के हमारे साथ यू जॉइंड इन टू वर्शिप एंड मैं प्रार्थना करती हूँ, ये मेरी घोषणा है आपके जीवन में. आई डिक्री ओवर योर लाइफ दैट योर लाइफ विल नेवर बी द सेम अगेन. योर लाइफ विल नेवर बी द सेम अगेन. आई नो दैट होली स्पिरिट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग. टुडे जस्ट few minutes I will share about the precious Holy Spirit, how it has changed my life and how it can change your life when you give it the priority. So before that, मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ जो आज स्टूडियो में हैं सबका हम गवाही सुने क्विकली. And I have Enosh with me, I have Elisha with me, and I have Devina and Monaji with me, and they are going to quickly share their testimony with you how God has changed their life. We'll start with Enosh. हाय, मेरा नाम इनोश है और मेरी गवाही यही है. एक छोटी सी गवाही बांटना चाहूँगा पूरे जीवन की जो अब तक प्रभु ने मेरे जीवन में किया. मैं एक मसीही ईसाई परिवार से हूँ और प्रभु को जानता था बचपन से ही, लेकिन कभी उसके साथ रिश्ता नहीं था. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन्होंने मुझे एक रिश्ते में जोड़ने के लिए बुलाया प्रभु ने. और मैं धन्यवाद देता हूँ उस दिन का जिस दिन मैं प्रार्थना घर से जुड़ा और यहाँ प्रभु की सेवकाई में उनकी उपस्थिति को महसूस किया. और प्रभु की उपस्थिति को मैंने आराधना में महसूस किया, क्योंकि मुझे ये अंदर से जो आराधना है वो प्रभु की ओर मुझे बहुत खींचती थी. तो कई बातें मेरे जीवन में भी उतार चढ़ाव आए, लेकिन सारी बातों में मैं प्रभु को महिमा देता हूँ, क्योंकि उन्होंने हर एक पड़ाव में, हर एक पल में मुझे थामे रखा और ना ही कभी छोड़ा. और
इस लायक बनाया कि हम उसकी आराधना कर सकें, इस लायक बनाए कि हम खड़े होकर उसकी स्तुति कर सके, चलते फिरते उठते बैठते लेटते जागते समय उसकी स्तुति कर सके। तो मैं परमेश्वर को सारी महिमा देना चाहता हूँ अपने जीवन के लिए कि उसने हमें अपनी बुलाहट के द्वारा बुलाया है और हम अपने आप ही नहीं इसमें आए हैं, प्रभु को जाने हैं, ये केवल उसकी ओर से था, उन्होंने हमें चुना है। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही ये है कि मैं इनोश का छोटा भाई हूँ और हम जैसे कि हम एक मसीही परिवार में पले बड़े हुए और शुरू से ही हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना है और उसके वचन को पढ़ा है, लेकिन एक जो रिश्ता था, एक जो बॉन्डिंग थी, जैसा भाई ने बताया, वो चीज़ नहीं थी और उस चीज़ की कमी थी। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर परमेश्वर ने हमको चुना है तो वो किसी भी जरिए से हमको अपने तक खींच लेता है। और मुझे वो दिन याद है कि एक अंकल हैं जिनका नाम डेविड फिलिप है और वो हमारे घर आए थे और हम दोनों घर पे अकेले थे और अंकल ने एक सेलिब्रेशन प्रेयर हम दोनों से करवाई थी। उन्होंने हमें नए जन्म के बारे में उस समय बताया था और वो आई थिंक 2008 की बात है और वो प्रार्थना हमने की अंकल के साथ। उसके बाद हम अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हुए। आगे 2010 में जाके हमने बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेना जो है वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है, लेकिन जो रिश्ता था वो भी अभी भी वो रिश्ता जो था प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं था। तो प्रार्थना भरा जीवन जो कि मैं शुरू से ही चाहता था कि एक हो, और उस चीज़ के लिए मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता कि प्रभु अगर तूने मुझे चुना है तो तू मार्ग को खोल। और मैं काफ़ी सालों से इस प्रार्थना को करता आ रहा था और मुझे नहीं पता था कि द्वार कैसे खुलेगा। मैं एक्चुअली स्टडीज़ भी कर रहा था, फिर साथ में जॉब भी कर रहा था और मैं खोज में था कि कोई करस्पॉन्डेंस बाइबल कोर्स हो जिसकी वजह से मैं परमेश्वर के वचन को और गहराई से जान सकूँ और उसके रिश्ते को और गहराई से जान सकूँ। तो एक करस्पॉन्डेंस कोर्स का परमेश्वर ने रास्ता पिछले साल खोला और मैं परमेश्वर के वचन को गहराई से जान पा रहा हूँ। और यही मेरी ज़िंदगी की गवाही है कि परमेश्वर ने मुझे चुना है और वो आगे मुझे लीड करेगा और मेरे जरिए बहुत सारी आत्माएं बचेंगी। प्रेज द लॉर्ड। मैंने 11 साल पहले जब परमेश्वर को जाना, तब तक मेरा जीवन बिल्कुल ख़त्म था। उससे पहले मेरे अंदर बहुत सा रिजेक्शन था, अनफॉरगिवनेस था, प्यार बिल्कुल नहीं था। जब परमेश्वर को मैंने जाना, प्रभु यीशु मसीह को, मैंने सुना था कि वो हमारे मित्र हैं, वो हमारे साथी हैं। जब मैंने परमेश्वर को जाना तो तब पता चला कि प्यार क्या होता है। और जब मैंने पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ा तो उसमें मैथ्यू 5:44 जहाँ मेरी नज़र टिकी कि परमेश्वर ने उसमें लिखा है कि लव योर एनिमीज एंड अपने शत्रुओं से प्यार करो, जो तुम इनसे नफरत करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। मैंने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर मैं कैसे उनके लिए प्रार्थना कर सकती हूँ जिन्होंने मुझे इतना हर्ट किया है, जिन्होंने मुझे इतना नफरत दिया है, इतना रिजेक्शन दिया, मैं कैसे कर सकती हूँ। तो परमेश्वर ने मेरे दिल से बात किया, बोला कि नहीं, जब तक हम अनफॉरगिवनेस अपने अंदर रखते हैं तब तक हम आशीष नहीं पा सकते। तो तब से मैंने लेट गो किया, अपने अंदर से कड़वाहट, प्राइड, एंगर, ये सब निकाला ताकि मैं परमेश्वर के और करीब आ पाऊँ और उनके साथ चल पाऊँ। परमेश्वर का महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में बहुत कुछ किया है। आज से 12 साल पहले जब मैं अपना घर छोड़ के यहाँ आई गुड़गांव में, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे बच्चे पढ़ रहे थे, मेरे पास नौकरी नहीं था, पर परमेश्वर ने कभी महसूस नहीं होने दिया कि हम अकेले हैं। वो हमेशा हर पल हमारे साथ था। उसने मुझे नौकरी ऐसे जगह दी, मदर्स प्राइड, जिसका मैं मतलब सोच नहीं सकती थी इतने बड़े स्कूल में मुझे काम मिल सकता है। प्रेसिडियम में काम किया जहाँ सोच के बाहर था। अब सन सिटी, वो भी गुड़गांव का सबसे बड़ा स्कूल, विदाउट एनी सर्टिफिकेट मैंने वहाँ पर काम किया। तो ये परमेश्वर ही हैं, यीशु मसीह हैं, जिन्होंने हमेशा ये बताया है अपने पवित्र शास्त्र के द्वारा
और हमारे दिलों से बात किया कि मैं ना तो कभी तुम्हें छोड़ूंगा ना कभी तुम्हें त्यागूंगा। Amen. Praise the Amen. Lord. Amen. Praise God. Praise God. मोना जी के पास सर्टिफिकेट्स खो गए थे और बहुत संघर्ष था कि उनको जॉब मिले नहीं मिले, but God is good. And I'll just quickly talk to you about Holy Spirit. और मैं पवित्र आत्मा के बारे में बांटूंगी जल्दी से आपके साथ। And we have very little time, so I want you to take your paper and pen, and we will worship again just in 10-15 minutes. 10-15 And we'll मिनट में close हम the दोबारा service आराधना with करेंगे worship. और आराधना के साथ समाप्त करेंगे। We thank God for all the testimonies. सारी गवाहियों के लिए धन्यवाद We परमेश्वर thank का। God that without Him, without the Holy Spirit, not a single life can change. धन्यवाद हो परमेश्वर का कि पवित्र आत्मा के बिना एक भी जीवन जो है नहीं बदल सकता। As I was preparing, I was asking God, what is that you want to share with your people tonight? और मैं जब तैयार कर रही थी आज के संदेश को, मैं पूछ रही थी परमेश्वर आप क्या हैं जो अपने बच्चों के साथ बांटना चाहते हैं। Suddenly I remembered मुझे याद आया that only when the Holy Spirit came in my life in 2004, month of April, अप्रैल के महीने में 2004 में जब पवित्र आत्मा मुझ पर आया, everything changed. वही समय था जब सब कुछ चीजें बदल Bible made sense to me. गई। उस समय से बाइबल मुझे समझ आने लगी। I could understand the Word of God. मैं परमेश्वर के वचन को समझना शुरू कर I दिया। started to think like God, speak like God, understand things like God. मैं परमेश्वर के समान बोलने लगी, परमेश्वर के साथ समान समझने लगी और उनकी तरह व्यवहार करने लगी। So I want to tell you that the most precious thing in a believer's life is, most precious person rather, in a believer's life is the Holy Spirit. एक विश्वासी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है जो है पवित्र आत्मा, एक खुद व्यक्तित्व। He's the Spirit of grace. वो आत्मा है अनुग्रह की। Without Him, you cannot finish the work that God has given you. उसके बिना जो परमेश्वर ने आपको कार्य दिया है वो नहीं आप पूरा कर Believe me, that is why David सकते। इसलिए दाऊद in Psalm 51 verse 11 said, "Take not your Holy Spirit from me." भजन संहिता 51:11 में लिखता है कि मुझसे अपनी आत्मा को ना ले। He was a powerful king. वो एक महान राजा था, He never failed in battle. कभी किसी युद्ध में नहीं हारा, But he was so sure about not letting go of Holy Spirit. लेकिन वो इस बात में बहुत निश्चित था कि वो पवित्र आत्मा को अपने जीवन से ना जाने दे। So when he sinned against God जब उसने पाप किया परमेश्वर and he के विरुद्ध realized it, और उसको महसूस हुआ, the first thing he said, सबसे पहली बात जो उसने "Take कही, anything from me, God, परमेश्वर कुछ भी मुझसे ले ले, but don't take the Holy Spirit, लेकिन अपनी आत्मा मुझसे अलग because ना ले, without Him I'm totally क्योंकि incomplete." उसके बिना मैं बिल्कुल अधूरा हूँ। So this is my prayer for you today यही मेरी प्रार्थना है आज and आपके for लिए me, और मेरे लिए भी, that you will give the highest priority in your life to the Holy कि Spirit. हम पवित्र आत्मा को सबसे महत्वपूर्ण उच्च स्थान देंगे अपने जीवन में। Amazing part about the Holy Spirit is महत्वपूर्ण और अद्भुत बात यह है पवित्र आत्मा के बारे that में, He doesn't want any glorification by any human being. किसी मनुष्य के द्वारा वो अपनी महिमा नहीं कराना चाहता। He never wants to drag your attention, others' attention towards Him. वो अपनी ओर ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता। He accomplishes everything in the world right now, वो अभी इस समय हर एक चीज, हर एक पूरे दुनिया पर जो प्राप्त करना चाहते हैं, and He's powerful that He's holding the universe together, और वो इतने सामर्थ्य कि वो अपनी पूरे ब्रह्मांड को संभाले हुए हैं, but He never asks for attention. लेकिन कभी वो अपना ध्यान केंद्र नहीं चाहते। I'm so amazed to realize this, मैं अद्भुत हूँ इस बात को जानकर, that such a mighty God, कितने इतने महान His परमेश्वर, Holy Spirit, उनकी पवित्र आत्मा will not desire any personal attention. कोई अपना निजी अपना स्वार्थ नहीं देखती और नहीं What अपना an ज्ञान चाहती। amazing God we serve. वो कितने अद्भुत परमेश्वर की सेवा I'm करते हैं। amazed to know this, that the master of this universe, मैं अद्भुत हूँ इस बात को जानकर कि स्वामी जो है इस ब्रह्मांड का, to save you and me, आपको और मुझे बचाने के लिए will come down वो नीचे आए and die on the और cross क्रूस पर मरे and rise again और दोबारा जी उठे on the third day, तीसरे दिन, so that ताकि you and I आप और मैं can live forever. हमेशा के लिए जी सकें।
If you are the one who feel that you have messed up in your life, यदि आपको लगता है कि आप वो व्यक्ति हैं जिसने बहुत गलती करी अपने जीवन में you think that you have made mistakes that nobody will forgive you, और आपने ऐसी गलतियां करी कि जो कोई किसी को माफी ना दे सके, I have to tell you something मैं today. आपको कुछ बताना चाहती हूँ। That God decided to save you before the foundation of the earth. इस ब्रह्मांड की रचना से पहले ही परमेश्वर ने योजना रखी थी कि वो आपको बचाए। And in John chapter 14 verse 16 to 30, if you can read it at home, यूहन्ना 14वां अध्याय उसकी 16 से 30वीं तक यदि पढ़ सकते हैं घर में जरूर पढ़ें। that Jesus says it's good that I'm going, यीशु मसीह कहते हैं कि अच्छा है कि यदि मैं जाता हूँ, but I will not leave you as orphans. लेकिन मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ के I'm जाऊंगा। going to send you the Holy Spirit, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा देता हूँ who will teach you everything, remind you everything that I have spoken. जो हर एक बात जो मैंने तुम्हें सिखाई है वो तुम्हें बताए। That is why I'm telling you today इसलिए मैं आज बता रही हूँ आपको, that without the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के बिना we are totally incomplete. हम अधूरे हैं। We cannot finish our work on the earth without the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के बिना हम पृथ्वी पर जो कार्य हैं उसको पूरा नहीं कर So सकते। if you can just quickly turn to John chapter 14, यूहन्ना उसका 14वां अध्याय जल्दी से निकालेंगे। and we will just go through one scripture एक ही आयत उसमें एक वचन देखेंगे हम, where it says that Jesus said, Amen. He says, Jesus answered, if a man loves me, he will keep my word, और ये यीशु मसीह ने उत्तर दिया, यदि मनुष्य मुझसे प्रेम करता है तो वो मेरे वचनों को पालन करेगा। my Father will love him, मेरा पिता उससे प्रेम करेगा, we will come to him हम उसके पास आएंगे and make our home with him. और उसके साथ अपना घर बनाएंगे। With this verse, I want to tell you that if you want the Holy Spirit to stay with you forever, इस वचन के साथ मैं बताना चाहती हूँ, यदि पवित्र आत्मा को आप चाहते हैं आपके साथ हमेशा बनी रहे, to guide you, to help you, आपको निर्देश देने के लिए, आपकी you सहायता have के to लिए, allow him to dwell and make you his home. आपको उसको अनुमति देनी पड़ेगी कि वो आपके अंदर अपना घर बसा सके। Because he is not going to force you. वो आपको आपको दबाव नहीं He देगी, is not going to manipulate you. आपको नहीं मैनिपुलेट करेगी, He is not going to make you afraid. वो आपको डराएगी नहीं, He is just going to gently guide you. वो आपको सीधे रूप से आप केवल निर्देश देंगे। So if you do not allow him to inhabit you, यदि वो आप उसको अनुमति नहीं देंगे कि वो आप पर प्रभावित he हो cannot जाए, help you. वो आपकी सहायता So नहीं this करेगा। is one scripture that is close to my heart. ये वचन जो मेरे हृदय के बहुत करीब है। He says, but the counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, लेकिन जो सलाहकार है, जो पवित्र आत्मा परमेश्वर भेजेंगे, पिता भेजेंगे मेरे नाम में, will teach you everything and remind you of all that I have told you. वो तुम्हें सब कुछ सिखाएगी और सब कुछ जो मैंने तुम्हें बताया वो बताएंगे। My friend, मेरे मित्रों, if you want to have peace in the time of turmoil, यदि आप मुसीबत के समय पर, समस्या के समय पर चाहते हैं आप Holy शांति, Spirit is the only way. पवित्र आत्मा ही एक तरीका है। Because He is going to remind you, वो ही आपको याद दिलाएंगे, He is going to teach you वो ही आपको सिखाएंगे। everything that you need to know for this season. इस समय के लिए जो भी चीजें आपको When सीखनी the है, world is running out of hope, जब दुनिया आशा रहित हो रही है, you have peace and hope आपके पास आशा है और आपके पास शांति है because of Yeshua. यीशु मसीह के कारण। If you are somebody who have never heard about Jesus, if you have never known about Jesus, today is your day that know Him as a person. यदि आपने अब तक यीशु मसीह को नहीं जाना है निजी रूप से, तो आज वो दिन है आप उनको जाने हैं निजी रूप से। And He said, if you want to really save yourself from fear, this is the scripture for you. Peace I leave with you. शांति मैं तुम्हें दिए जाता हूँ, My peace I give to you. अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, Not as the world will give. वैसे नहीं जैसे दुनिया देती I है, give you. मैं देता हूँ। Do not let your heart be troubled. अपने हृदय को प्रभावित ना हो Neither let it be afraid. और ना ही उससे So डरे। today I declare that you are peaceful. मैं आज आपके ऊपर घोषित करती हूँ कि आप शांति में हैं, And I declare that you are free from all kinds of fear. कि आप आजाद हैं हर एक डर से, Fear of the sickness, डर बीमारी के डर से, fear of the virus, वायरस के डर से, fear of future, भविष्य के डर से, fear of not having finance, और धन ना होने के कारण, fear of losing somebody, किसी को खोने के डर, fear of not having enough, कुछ काफी ना होने का डर, fear of any kind, कोई भी तरीके का डर क्यों ना fear हो, of rejection. तिरस्कार का डर। You know, many of us are
very afraid. We don't want to try anything new because we fear because we will be rejected. हम कई बार कई नई चीजें नहीं करना चाहते जीवन में क्योंकि हमें लगता है कि हम तिरस्कारित किए जाएंगे। Today I declare that you are free from it. आज मैं घोषित करती हूँ कि I'll आप just आजाद हैं। read one more scripture and एक we're और going वचन to पढ़ूंगी worship again. और फिर आराधना में जाएंगे। It is Isaiah 11. यशाया उसका 11वां अध्याय। I pray that today you will learn to tap into the Holy Spirit. मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज आप सीखेंगे पवित्र आत्मा में कदम रखने Because का। Bible says those who are the sons of God are led by the Spirit of God. और जो परमेश्वर के पुत्र हैं वो उसकी आत्मा के द्वारा चलाए जाते So हैं। there will be something that will happen to you when the Holy Spirit comes. कुछ होता है जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है। The Spirit of the Lord shall rest upon him. परमेश्वर का आत्मा उसमें ठहरेगा। The Spirit of wisdom बुद्धि and understanding. और समझ, The Spirit of counsel समझ और युक्ति की and प्राप्ति might. और सामर्थ्य की प्राप्ति। The Spirit of knowledge ज्ञान की आत्मा and of fear of Lord. और परमेश्वर के भय की आत्मा। He shall delight in the fear of the Lord. वो प्रभु के भय में आनंदित होगा। He shall not judge by what he sees, वो मुंह देखकर न्याय नहीं करेगा nor reprove by what his ears hear, और ना ही अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, but with righteousness लेकिन न्याय के साथ he shall judge. वो न्याय करेगा। So when the Spirit of Lord comes upon you, these are the manifestations. जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है तो ये सारे प्रकटीकरण हैं। और You will understand the Lord. आप प्रभु को समझ पाएंगे। You will have wisdom. आपके पास बुद्धि होगी, You will have understanding. आपके पास समझ होगी, You will have the counsel of God. आपके पास परमेश्वर की सलाह You will होगी, have the might of God. आपके पास उसकी सामर्थ्य You will होगी, have the spirit of knowledge. आपके पास ज्ञान की आत्मा होगी And there will be a reverential fear of God in your life. और आपके जीवन में परमेश्वर का भय बना रहेगा। You will have a natural reverence. Nobody will have to tell you that fear God anymore. आपको कोई बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप परमेश्वर का आदर सम्मान करेंगे, उसका भय You will रहेगा। just know to respect Him. आप जानेंगे कि कैसा You will be रहता है। sensitive to His आप presence. उसकी उपस्थिति के प्रति बहुत सकारात्मक You will होंगे। just know that this is what He likes. आप जानेंगे कि ये उसको पसंद है, You will know that this is what He doesn't like. ये चीजें उनको नहीं पसंद है। Everything that breaks the heart of God will break your heart. हर एक बात जो परमेश्वर के हृदय को तोड़ती है वो You आपके will, हृदय को you तोड़ती will be passionate for souls. है। आप आत्माओं के लिए बहुत उत्सुक होंगे। Nobody will have to force you to serve God. किसी को आपको दबाव नहीं देना पड़ेगा, जोर नहीं देना Nobody पड़ेगा will सेवा have to करने के लिए। counsel you to serve God. किसी को सलाह नहीं देनी पड़ेगी कि आप करें सेवा There will be a परमेश्वर। natural desire in you to forever please the Lord by your obedience. आपकी आज्ञाकारिता के अंदर द्वारा आपके अंदर अपने आप परमेश्वर की सेवा करने You की will बात be है। surprised that Holy Spirit will get involved in your food, your clothes, in your house, in your future, in everything. आप अचंभित हो जाएंगे इस बात को जानकर कि पवित्र आत्मा आपके खाने, कपड़े, रहने सब बातों में सम्मिलित He होगी। just wants to get involved with वो you. आपके पास आपके साथ सम्मिलित होना But चाहिए। as we read in the beginning, लेकिन जैसे हमने शुरू में you पढ़ा, have to make your body His home. आपको अपने मंदिर को, अपनी देह को उसका घर बनाना Are you है। ready for it? क्या आप तैयार हो? So उसके as लिए? I'm going to worship again, जैसे हम वर्शिप करते हैं, I आराधना want करते you to prepare your हैं, heart. मैं चाहती हूँ आप अपने हृदय को तैयार I करें। want you to make your body a dwelling place. मैं for चाहती God. हूँ कि आप अपने देह को परमेश्वर के रहने का स्थान Now बनाएं। you may say that I feel unclean. आप हो सकते हैं बोल रहे हो कि मैं तो अशुद्ध महसूस करता हूँ। Now let me ask you, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, do you take a bath before you take bath? क्या आप नहाने से पहले नहाते हैं? No, you just go and take bath when you feel unclean. आपको जब गंदा महसूस होता है आप जाते हैं नहा लेते So हैं। I have a key for you today. आपके लिए मेरे पास एक कुंजी है। When you feel unclean, जब आपको अशुद्ध महसूस हो, go and take shower. जाएं और नहाएं। When you feel spiritual unclean, जब आत्मिक रूप से आप गंदा महसूस करें, spiritually unclean, you just run to the Lord, run to the Holy Spirit and allow Him to inhabit. और उसको अनुमति दें कि वो आप पर हावी हो जाए। So another few minutes that we're going to worship, अगले समय में जब हम आराधना करते हैं, before I pray over you, मैं आपके ऊपर प्रार्थना I करने just से want पहले, you to open your heart, मैं चाहती हूँ कि अपने हृदय को खोलें, open your life, अपने जीवन को open the खोलें, areas of your struggle. अपने संघर्ष के जीवन को खोलें। Allow God to be God in your life. परमेश्वर को परमेश्वर रहने In दें। Yeshua's name, यीशु के नाम में Amen. आमीन। Yeshu Naam, Yeshu Naam,
यीशु नाम, 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 यीशु नाम। तेरे नाम में है शक्ति, तेरे नाम में है शांति, तेरे नाम में है सामर्थ्य प्रभु। तेरे नाम में नाम में है शांति, तेरे नाम में है Krishna
you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you that you're making the hearts, the bodies, the houses your habitation, Lord. Flow, 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 Holy Spirit. Flow upon every heart. Flow upon every life. I want to pray for all those people who feel broken, who feel wounded, who have gone through rejections. And at the song that we are going to worship, Then Sings My Soul, I believe that you will just erupt in praise. You will just erupt in praise as we worship. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! Precious Holy Prabhu Yeshu, Then sings my soul. Then sings my soul. We want
हम सबके लिए और हर एक इंसान जिसने आज हमारे साथ वर्शिप किया, हर वो घर के लिए, every house that joined in. Lord, I pray that there will be peace and prosperity, and there will be a significant change in their lives. In Yeshua's name I declare, and until we meet again, may the Lord bless you, make His face to shine upon you, keep you safe all the days of your life. May you lack nothing in your life. In Yeshua's name I declare, Amen.